Hello everyone, welcome back to this channel. So students, previously we have finished 3.2 from History Chapter 1 Nationalism in Europe. Today in this video we are going to cover this portion of 3.3 1848, the Revolution of the Liberals. Obviously, with this name Revolution of the Liberals, it is pretty much clear that who created the revolution and who were those liberals. So they were educated middle class people. They wanted abdication of the monarch and they want to establish republic based universal male suffrage. There was a lagging. They were not believing in having right to vote to women. So how they created the story of Germany is given here in a summary. How they created National Assembly, the Frankfurt Parliament, and who was declared the king there, and this all effort done by these middle class educated people is being discussed here. Okay, so let's continue with the detailed discussion. Hope this is going to be very helpful to you. So we are studying History Chapter 1, the rise of nationalism in India, and we are on page number 17. Everybody, you all are requested to take your textbook and have a highlighter or pen in your hand or pencil. So students, in last video we have studied about the revolutions. The last revolution we have studied that belonged to Silesia, where the cotton weaving people in a village created a revolt. You can say a kind of upheaval was there. What was the result? We have studied in this context. So today we have to start 3.3 1848, the revolution of the liberals. Hope whatever I have explained in the previous content, previous video is clear to everyone. Okay. So students, 3.3 1848, the revolution of the liberals. This is the topic I'm going to start. Okay. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. सभी अपने अपने तरीके के रिवोल्ट्स कर रहे थे. Poor, unemployed, starving peasants, workers, they all were creating a kind of revolt. अपने अपने लेवल पर सभी रिवोल्ट कर रहे थे 1848 के टाइम पर यूरोप में. A revolution led by the educated middle class was underway. अब एजुकेटेड मिडिल क्लास डेफिनेटली ये ही वो ग्रुप था जो बिल्कुल चेंजेस के लिए रेडी रहता था, चेंजेस लाने के लिए रेडी रहता था. So they were also having a revolution. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch. क्या हुआ? Events of February 1848 in France. क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लुई फिलिप का फ्ली होना, है ना? Had brought about, उस इवेंट में क्या हुआ था? मोनार्की का हटना, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क या मोनार्की, एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज. हम लोगों ने यही पढ़ा था. लुई फिलिप फ्ली कर जाते हैं और रिपब्लिक क्रिएट होता है, दोबारा से एस्टैब्लिश होता है, एंड ऑल मेल्स गॉट राइट टू वोट. So that is why it is written here, this republic was based on universal male suffrage had been proclaimed. कम से कम सारे मेल्स को राइट टू वोट मिल गया. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, यूरोप के दूसरे और पार्ट्स जहां पे अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन जगहों पर, इन स्टेट, इन कह सकते हो किंगडम्स में, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. ठीक है. अब इन एरियाज में, यूरोप के इन पार्ट्स में जहां पे अभी नेशन स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट था ही नहीं, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे
जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े से आजाद ख्याल के हैं, उन्होंने अपनी डिमांड में दो बातें रखी। दो बातें नहीं, एक ही बात है। एक है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विद नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, ये देश यूनाइटेड हो, जैसे कि हम लोगों ने एक टर्म पहले भी पढ़ा था, कॉमन आइडेंटिटी। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary। अभी ये जो अनरेस्ट है, लोगों में बेचैनी बढ़ रही है कि देश को यूनिफाई करें, नेशन स्टेट बनाएं, इसका एडवांटेज लिया इन लिबरल मिडिल क्लासेस ने और अपनी डिमांड को भी पुश करना स्टार्ट किया कि अभी वैसे भी माहौल गर्म है, लेट्स पुश हार्डर टू क्रिएट आवर नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री, है ना, पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके बेसिस पर कंट्री हमारी यूनाइट हो जाए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है, कैसा देश बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर, जहां पे क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि ये जो लिबरल मिडिल क्लासेस थे, दे वांटेड पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल बेस्ड नेशन स्टेट where there is a constitution, where there is freedom of press, where there is freedom of association. So this was the basic demand of the liberal middle classes. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals। अभी जर्मन रीजन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जितने पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, उनके मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे। They all came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। जर्मनी में कह सकते हो कि शुरुआत ऐसे हो रही है कि जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया जाए। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जिनके ज्यादातर मेंबर्स प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस हैं, दे ऑल केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन जर्मन नेशनल असेंबली। ये भी नेशनल असेंबली बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं। On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। बड़ी खुशी खुशी 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक बढ़िया सा प्रोसेशन निकालते हुए, मार्च फेस्टिव प्रोसेशन निकालते हुए फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट, जो कहाँ बनाने का डिसाइड हुआ, चर्च ऑफ सेंट पॉल की तरफ सारे लोग बढ़ रहे थे। बढ़े आगे कि सेंट पॉल चर्च चलते हैं, वहां पे हम अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्रिएट करेंगे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। क्या डिसाइड किया कि वो लोग आपस में मिलकर जर्मनी को एक नेशन बनाएंगे और जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क हेड होगा। ठीक है, यानी पार्लियामेंट भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, और मोनार्क उसका हेड होगा। जो भी राजा होगा, मोनार्की सिस्टम होगा। अच्छा बच्चों, इस लाइन में क्या हिंट मिल रही है कि क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? ओके, लेट मी टेल यू। आपने सुना होगा कि एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब जहां पे मोनार्क इज हैविंग ऑल द पावर्स इन हिज हैंड। ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही पहले एस्टैब्लिश करने की ट्राई किया गया था। यहाँ पे भी जर्मनी के लोग यही करना चाह रहे हैं। दे वांट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वांट अ पार्लियामेंट
बट दे वांट इट हेडेड बाय द मोनार्की, यानी पार्लियामेंट हो, ठीक है, जैसे अभी भी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, बट अभी भी रॉयल फैमिली मोनार्की सिस्टम चलती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। व्हेन द डेप्यूटीज, कितने डेप्यूटीज हैं, 831, है ना, व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. कितनी अजीब सी बात है, और कह लो कितना एरोगेंस है, कि लोगों की सहमति है कि हम नेशनल असेंबली बनाएं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और राजा को हेड बना दें। जब इतना सब कुछ डिसाइड हो जाता है, जब ये सारे डेप्यूटीज मिलकर राजा कौन है किसको ऑफर करते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, अंडरलाइन करके रखें यहाँ पे से, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ कौन है, किंग ऑफ प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया को क्राउन ऑफर करते हैं कि अब आप जर्मनी के राजा बनिए, देन ही रिजेक्टेड इट। क्यों रिजेक्ट किया होगा, अब आपको तो पता समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसको चाहिए एब्सोल्यूट मोनार्की, और यहाँ पे कैसी मोनार्की मिल रही है, monarch has to share his powers with the constitution or the parliament, ठीक है, तो उसने उस ऑफर को, उस क्राउन को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद क्या किया, ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, यानी कि उसको इलेक्टेड असेंबली खुद भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उन राजाओं का साथ कर लिया, उनको ज्वाइन कर लिया जो लोग इलेक्टेड असेंबली को अपोज करते थे, यानी खुल के उसने बता दिया कि मैं पावर शेयर करने में बिलीव नहीं करता, है ना, I believe in having absolute monarchy. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. फिर राजा के पास क्या होता है, अपना एक मिलिट्री पावर होता है, पैसा तो उसके पास है ही है, इसके बेसिस पर उसने स्ट्रॉन्ग बेसिस पर पार्लियामेंट्री से बेसिस को एरोड कर दिया, एरोड करने का मतलब उखाड़ के फेंक देना। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of the workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. यही होना ही था। जो पार्लियामेंट थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस, जिन्होंने वर्कर्स की डिमांड को रेजिस्ट किया, आर्टिसंस की डिमांड को रेजिस्ट किया। जब आप बेसिक और इम्पोर्टेंट डिमांड्स को लगातार रेजिस्ट करते रहते हैं तो क्या होगा, यू विल लूज योर सपोर्ट। जब आपको सपोर्ट नहीं रह जाएगा लोगों का, तो डेफिनेटली आप वीक हो जाएंगे, और उस वीक स्टेट में राजा ने फायदा उठाया, ट्रूप्स बुलाए जाते हैं और असेंबली को फोर्सफुली एक अजीब तरीका का एंड मिलता है, मतलब ना ही वो पावर में है, ना ही वो पूरी तरह से खत्म हुई है, एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। द इशू ऑफ extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि यूनिवर्सल मेल सफरेज तो मिल गया, बट वुमेन का तो कहीं नामो निशान नहीं था। तो अब इस टाइम तक आते आते विमेन के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी कंट्रोवर्सी लिबरल मूवमेंट से शुरू कर दी, और वो बिल्कुल लॉजिकल भी था, जायज सी बात है कि वुमेन को आप पूरी तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो लिबरल मूवमेंट्स में वुमेन के राइट टू वोट या पॉलिटिकल राइट्स की भी बात होने लगी, in which large numbers of women had participated actively over the years. खुद women ने भी इसमें participate किया। Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. औरतें भी कहाँ पीछे थी, उन्होंने अपने political associations बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स स्टैब्लिश करे, पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया और डेमोन्स्ट्रेट भी किया, जो भी अथॉरिटी रूल करती थी उनके सामने
डेमोन्स्ट्रेट किया. Why they were demonstrating? They were demonstrating to achieve right to vote, or you can say the political rights. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. इतना कुछ करने के बाद भी जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो उनको राइट टू वोट देने से मना कर दिया गया. ठीक है, ये आप पेंटिंग देख रहे हैं एक, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में सबसे पहले कहाँ बनी थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. ठीक है, ये तो बहुत ही इंसल्टिंग था. ठीक है, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी तो कहाँ चल रही थी? सेंट पॉल चर्च में. विमेन को बिल्कुल भी कोई राइट नहीं था. उनको क्या अलाउ था? जस्ट बी द ऑब्जर्वर. सिर्फ आप देख सकते हो, आप ऑडियंस हो, आप व्यूअर हो. यू जस्ट आर अलाउड टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. मतलब आप देख सकते हो, रहो वहां पे, बट आपको कोई बोलने का राइट नहीं है. आपका कोई भी राइट वहां पे नहीं है. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है कभी कभी शॉर्ट में. द सेंटेंस इज टेलिंग यू definitely the liberal movements were suppressed by the conservative forces. Multiple ways were there. That is how these conservative forces were able to suppress the liberal movements, but they were not able to restore the older order. जैसा पुराने टाइम में हो रहा था बिल्कुल वैसा ही उसे स्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि पहले से चीजें बहुत ज्यादा बदल गई थी. लोगों की सोच बदल गई थी, लोगों के एफर्ट्स बदल गए थे. ठीक है, क्या क्या चीजें थी? मोनार्क्स वर बिगिनिंग to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. बार बार होने वाले रिवोल्यूशंस और रिप्रेशन से मोनार्क्स को ये बात समझ में आ गई थी कि लिबरल नेशनलिस्ट को अगर आपको काम डाउन करना है, लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को काम डाउन करना है, तो आपको उनको कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा. उनकी भी बात माननी पड़ेगी. ठीक है, देखिए एक होता है ना कि एक बार रेवोल्यूशन हुआ और किसी तरह से उसको बिल्कुल हार्डली रिप्रेस कर दिया गया, और वो रिप्रेशन इतना स्ट्रांग था कि दोबारा लंबे समय तक कोई रिवोल्ट नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो मोनार्क सक्सेसफुल है. मगर यहाँ क्या हो रहा था? जितना रिप्रेशन हो रहा था उतने ज्यादा रिवोल्ट बढ़ रहे थे. तो मोनार्क्स को ये तो समझ में आ गया कि बात तो माननी पड़ेगी, भले चाहे पूरी नहीं मानो, बट कहीं ना कहीं आपको लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की बात माननी पड़ेगी. यू हैव टू ग्रांट सम कंसेशंस टू देम. तब जाके ये रिवोल्ट थोड़े से थमेंगे. क्योंकि कोई भी अथॉरिटी हो, बहुत ज्यादा जनता का रिवोल्ट वो मैनेज नहीं कर सकते हैं. भाई हर दिन आप कैसे लड़ने के लिए तैयार बैठे रह सकते हो? है ना? अगर जनता हर दिन रिवोल्ट कर रही है तो अब हर दिन रिप्रेस कर पाओगे क्या? कितना रिप्रेस करोगे? देयर इज अ लिमिट टू रिप्रेस. Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. आखिर में वही करना पड़ा इनको कि जो चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले आ चुके थे, वो फाइनली इन लोगों को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में 1848 के टाइम लाना पड़ा. 1848 के बाद लाना पड़ा क्योंकि रिवोल्ट्स, नंबर ऑफ रिवोल्ट्स वर इंक्रीजिंग. Thus, serfdom and bonded labor were abolished. ठीक है,
सर्वडम अबॉलिश किया गया, बॉन्डेड लेबर अबॉलिश किए गए, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। दोनों जगहों पे, रशिया में भी और हैब्सबर्ग एम्पायर के डोमिनेटेड एरियाज में सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर दोनों को अबॉलिश करना पड़ा। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. हंगरी के लोगों पर रूल करते थे हैब्सबर्ग रूलर्स, तो उनको थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी उनको 1867 में देनी पड़ी, क्योंकि बार बार स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट्स हो रहे थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको लास्ट ये कंटेंट समझ में आया होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी लाइन टू यू. So students, this is it for today. Just keep revising it, and if you have any query, as always I say, you can put in the comment section. You can ask any question, you can clear your doubts. I'll answer